اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اب کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی، تم مرغوں کو نہیں سنا سکتے، ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم انہوں کو نہ کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہمارا آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آواز ایک بار پھر بے کرن فضاؤں میں ماورائے کہکشاں نجوم اور لوح و قلم پیشانی چومتے الفاظ اور معانی کی طرح دھیمی ہوئی، اس کے بعد تلاوت کرنے والے آواز برق و شرر کے کوندوں نبض میں انقلاب برپا کرتے ستاروں کی چمکتی زو اور نظر کی جھنکار کی طرح بلند ہوئی۔ وہ پھر تلاوت کر رہا تھا، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جانے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم مقسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑا بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے، وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں ان روز حشر تک پڑے رہے ہو۔ سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ کہا دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے ان مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھتا لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی، صبر کرو، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں تک تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والا خاموش ہو گیا تھا۔ جب تک وہ تلاوت کرتا رہا اس وقت تک برقائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے لوگ سب چپ چاپ عقیدت مندی کے ساتھ وہ آواز سنتے رہے۔ جبکہ جس عرب کو بلا کر لایا گیا تھا انہوں نے دیکھا، تلاوت سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کا انداز بالکل عربوں جیسا تھا، اور اس نے اپنی منہ لینے والی آواز میں جس انداز میں تلاوت کی تھی اس سے وہ عرب لشکری پکھل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر برقائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، آنکھیں اس نے خشک کیں۔ برقائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے سب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب اس نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا تب برقائی خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، لیکن بیچ میں کسی نے اس انداز میں تلاوت شروع کی کہ ہم سب اس کی آواز اور تلاوت کے الفاظ میں کھو گئے۔ اب جب کہ تلاوت کرنے والا خاموش ہو چکا ہے، بتا میرے بھائی، کیا منصور بن احمد تم لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہے؟ اس موقع پر اس عرب نے ایک گہری نگاہ باری باری برقائی، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنی نگاہیں اس نے برقائی خان پر جمائیں اور کہنے لگا، خاقان، ابھی جس شخص نے قرآن مقدس کی تلاوت کی یہی تو منصور بن احمد ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ جس قدر اس کے ساتھی اور سالار یہاں داخل ہوئے ہیں اس نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے متعلق یہاں کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ فراتاتار کے سردار لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت ایک عام اور معمولی لشکری کی حیثیت سے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس عرب کے ان الفاظ پر لوئی تاشی اور یانگ خان دنگ رہ گئے تھے۔ پھر برائی خان نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے سالار بھی ہیں؟ وہ عرب پھر بولا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ حسام الدین جو کندار اور شرف الدین کردی بھی ہیں۔ برقائی خان نے سکون کا سانس لیا، پھر اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم جاؤ اور تینوں کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ انہیں کہنا کہ برائی خان ان تینوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برقائی خان ایک قریبی چٹان پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھنے ہوئے لوئی تاشی، یانگ خان بھی وہاں بیٹھ گئے، جبکہ برقائی خان نے اپنے ساتھ آنے والے محافظ دستوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عرب لشکری لوٹا۔ اس کے ساتھ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جو کندار تھے۔ مینوں جب قریب آئے تب برقائی خان اپنی جگہ سے اٹھا۔
पहले तेनू से गले मिला और जोश अंदाज में मुसाफा किया। बरकाई खान की तरफ देखते हुए लोई ताशी और बांग खान भी ऐसे ही अंदाज से मिले। यहाँ तक कि बरकाई खान कुछ देर तक मेनू का जायजा लेता रहा। फिर उसकी निगाहें मंसूर बिन अहमद पर जिम गईं और वो कहने लगा, आपका हुलिया मुझे बताता है कि आप अरब हैं। क्या थोड़ी देर पहले करीब कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर आप ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे। मंसूर बिन अहमद ने बरकाई खान की तरफ देखा, कहने लगा, आपका अंदाज़ा दरसत है, तिलावत में ही कर रहा था। उस पर खुशी का इजहार करते हुए बरकाई खान कहने लगा, उसका मतलब है आप मंसूर बिन अहमद हैं, और आपके साथ आपके दोनों सालार शरफ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो किंदार हैं। मुझे बेहद दुख और अफसोस हुआ है कि आप एक आम शक्री की हैसियत से उनको हिस्तानी सिलसिलों में दाखिल हुए हैं। आप बगदाद के लश्करियों के नायब सालार एला थे। आपकी एक हैसियत, आपका एक मकाम था। उस मकाम को फरामोश करके आपने क्यों यहाँ एक मामूली लश्करी की हैसियत से हलाको खान के खिलाफ काम करने का फैसला किया। बरकाई खान के ये अल्फाज सुनकर मंसूर बिन अहमद की आंखों में आंसू उतर आए थे। यही हालत शरफ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो किंदार की थी। यहाँ तक कि मंसूर बिन अहमद ने अपने आप को संभाला और कहने लगा, मैं एक हारा हवा शिकस्त खुर्दा लश्करी था। उस बना पर यहाँ आने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया था कि किसी पर अपना आप जाहिर नहीं करूँगा। एक आम लश्करी की हैसियत से लोई नाशी और यांग खान के तहत हलाको खान के खिलाफ अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा। अब जबकि आपने मुझे जाहिर कर दिया है, तब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं लोई ताशी और यानग खान के तहत काम करता रहूं। जवाब में बरकाई खान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, बगदाद के सालारों में से फतह अल-दीन दाद और मंसूर बिन अहमद पर सबको फ़ख्र और नाज था। ये अलहदा बात है कि तुम्हारे चंद साथियों की गैर जिम्मेदारी की वजह से हिला को तुम लोगों के खिलाफ कामयाब हवा, वरना जंग के पहले हिस्से में तुम और फतह अल-दीन ने बुलाको खान को बदतरीन शिकस्त दी थी, और वो शिकस्त उठाकर भागा था और शिकस्त भी इसे ज़ल्त आमीज़ हुई थी। मेरे अजीज़ भाई, उनको हिस्तानी सिलसिलों के अंदर तुम्हारी हैसियत वही रहेगी जो बगदाद में थी, और हसाम अल-दीन जो किंदार और शरफ अल-दीन भी इसी हैसियत से यहाँ रहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद बरकाई खान जब खामोश हुआ, तब हुई ताशी बरकाई खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप इजाज़त दी तो उस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बरकाई खान मुस्कुराया और कहने लगा, जानता हूँ तुम क्या कहोगे। बहरहाल मंसूर बिन अहमद की मौजूदगी में कहो, मैं सुनना पसंद करूँगा। लोई ताशी आगे बढ़ा। यानग खान को उसने मखसूस इशारा किया। फिर दोनों ने अब कमर पर बंधी हुई सुर्ख चमड़े की पेटियां, जिनके अंदर उनकी तलवारें और खंजर थे, पेटियों खोलकर उन्होंने मंसूर बिन अहमद के पाँव में डाल दी थीं। ये सूरत हाल माँ देखते हुए मंसूर बिन अहमद बरककर पीछे हट गया। उस पर लोई तासी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मंसूर बिन अहमद, आप जितना चाहें पीछे हट जाएं, लेकिन जो फैसला हमने खाकान बरकाई खान की मौजूदगी में किया है, उस पर अमल किया जाएगा। मैं और यानग खान दोनों फ़रातातार कबाइल की सिरदारी और नाइब सिरदारी से दस्तबरदार होते हैं। उनको हिस्तानी सिलसिलों में जिस कदर हमारे जंगजू हैं, सबके कमांडर और सालार आज से आप हैं। शरफ अल-दीन कर दी और हसाम अल-दीन जो किंदार दोनों आपके नाइब हैं, जबकि मैं और यांग खान उन दोनों के बाद आपके नाइब की हैसियत से काम करेंगे। मेरे भाई, ये ऐसा फैसला है जिसे तब्दील नहीं किया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस फैसले को झटलाएंगे नहीं और जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद लोई ताशी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मुझे उम्मीद है आपकी कमानदारी में दुश्मनों पर हम खूब ज़रिब लगाएंगे और उन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे। लोई ताशी जब खामोश हुआ, तब बरकाई खान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई आगे बढ़ा। अपना हाथ उसने मंसूर बिन अहमद के शाने पर रखा, फिर अपना मुंह उसके गाना के करीब ले गया और कहने लगा, मंसूर बिन अहमद, आज से तुम यहाँ के सालार एला हो। देखो, उन दोनों ने अपना पिटियों खोलकर तुम्हारे सामने डाल दिए हैं। अब तुम ऐसा करो, आगे बढ़ो, उन दोनों का पेटियां उनकी कमर पर बांधो। उस तरह ये बात पकी और पख्ता हो जाएगी कि उन इलाकों में सरदार हो और ये तुम्हारे मातहत काम करने वाले हैं। उस मौके पर एक आहतजाजी की निगाह मंसूर बिन अहमद ने बरकाई खान डाली।
कुछ कहना चाहता था कि बराई खान ने नफी में इंगली बलाई, फिर बोला और कहने लगा, अहीन अहमद, मेरे भाई, उस मौके पर कुछ न कहना। जो फैसला लोई ताशी ने किया है वही आखिरी है। उस पर मंसूर बन अहमद आगे बढ़ा। दोनों की पेटियां इकट्ठा कर उसने लोई ताशी और बांग खान की कमर से बांध दी थीं। मंसूर बन अहमद जब ऐसा कर चुका तब बरकाई खान, लोई ताशी और यांग खान ने खुशी का इजहार किया। हसाम अल्दीन, जो किंदार और शरफ अल्दीन करदी भी मुस्करा रहे थे। फिर मंसूर बन अहमद की तरफ देखते हुए बरकाई खान कहने लगा, अब तक मेरे और लोई ताशी के दरमियान जासूसों के जरिए राबता और वास्ता रहा है। जिस वक्त हलाको खान हम पर हमला और होने के लिए आया तो मेरे मुखबरों ने लोई ताशी और यांग खान को भी इतला कर दी थी। उस बना पर ये दोनों भी हरकत में आए और उस तरह हमने मुतहद होकर हलाको खान को बदतरीन शिकस्त दी। क्या तुम उस सिलसिले में तब्दीली करना पसंद करोगे? मंसूर बन अहमद ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर आपके और उस कोहिस्तानी सिलसिले में बसने वाली कवत के दरमियान मुखबरों के जरिए राबता रहे तो फिर उसमें एक दूसरे को इतला देने में ताखिर होगी। मैं चाहूँगा कि आपके शहर बरकाई सराय और फ्रांतातार कबाइल के दरमियान जो कोहिस्तानी सिलसिले की चोटियाँ हैं उन पर चौकियाँ कायम कर दी जाएं। चौकियों में पहरा देने वाले तब्दील होते रहें। चौकियों पर हर तरह के झंडे हों, एक सुर्ख रंग के, दूसरे हरे। जब अमन हो, कोई खतरा न हो तो उन चौकियों पर हरे झंडे लहराते रहेंगे, और जब खतरा महसूस किया जाए तो उन चोटियों पर सुर्ख परचम लहरा दिए जाएं। रात के वक्त तारीकी में अगर कोई दुश्मन हमला और होता है तो सुर्ख और हरे झंडे काम नहीं दे सकते, लिहाजा उन चौकियों में नाकौस बजाने वाले भी होने चाहिए। रात के वक्त अगर हम पर कोई हमला और होता है तो अगर पहले आपको उसकी इत्ला होती है, आप तरफ से चौकियों पर नाकौस बजते हुए अफरातातार कबाइल की तरफ आएंगे और अफरातातार कबाइल पहले खतरे को महसूस करते हैं तो उनकी तरफ से नाकौस बजते हो आपकी तरफ जाएंगे। ये सारा काम चंद लम्हों में मुकम्मल हो जाएगा और दुश्मन का खिलाफ हम बड़ी सरत और तेजी के साथ हरकत में आ सकेंगे। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बन अहमद खामोश हवा। तब कुछ देर तक बरकाई नार तवसीफी अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जो तजवीज़ तुमने पेश की है मैं समझता हूँ उसका जवाब नहीं है, क्योंकि अब तुम फ्रातातार कबाइल ही नहीं उन सारे इलाकों के सरदार हो। लारताशी और यांग खान ने अपने यहाँ एक बैतुल-माल खोल रखा है जिससे न सिर्फ लश्करियों के अखराजात पूरे किए जाते हैं बल्कि उनके यहाँ जो ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल भी रखा जाता है। ये सारी चीज़ें लोई ताशी और यांग खान तुम्हारे जवा करेंगे। अब कोहिस्तानी सिलसिलों पर चौकियां कायम करना, उन पर हरे सुर्ख झंडों एहतमाम करना, हर चौकी में नाकौस बजाने वालों का तायन करना। मंसूर बन अहमद, मेरे हवा ये तुम्हारा काम है और तुम खुद ही उसकी तकमील करोगे। मैं समझता हूँ अगर ये काम हो जाना तो फिर लम्हों के अंदर हमारा आपस में राबता हो जाया करेगा और आने वाले दूर में हम पर अंदाज में इलाकों के खिलाफ ज़रिब लगाने में कामयाब हो जाया करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद बरकाई खान जब खामोश हवा तब लोई ताशी बोला और के लगा, मंसूर बन अहमद, हमारे मुहतरम, हमारे सरदार, अब तक आपने जिन कमरों के अंदर क़याम कर रखा है अब वहाँ आपका क़याम नहीं होगा। आपके अलावा हसाम अल्लाह, जो किंदार और शरफ अल्दीन कर दी तेनू लोई ताशी अपनी बात मुकम्मल न कर सका। मंसूर बन अहमद बोला और कहने लगा, हुई ताशी, मेरे भाई, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, फ्रातातार कबाइल की सालारी कबूल कर ली है। क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? हम नहीं चाहते कि हमारी रिहाई का तब्दील की जाए। हमारी रहाइश गाहें ज़रा फासले पर हैं क्योंकि मैं और मेरे साथी अपने अहल खाना के साथ नहीं आए, अकेले रहते हैं, लिहाजा हमारा एक तरफ रहना ही अच्छा है। मैं जानता हूँ बगदाद में मेरे अहल खाना का खात्मा कर दिया गया होगा और कोई वहाँ जिंदा नहीं बचा होगा। हलाको अगर ये ख्याल करता है कि हम खामोश बैठे रहेंगे तो ये उसकी गलती है। हम उसके खिलाफ हरकत में आएंगे और वक्तन फ़ौक्तन इसे नुकसान पहुंचाते हुए न सिर्फ इसे अपनी मौजूदगी, अपनी क़वत का एहसास दिलाएंगे, बल्कि उसके अजीज़ों का कत्ल आम करके इसे भी वही दुख पहुंचाएंगे जो दुख उसने बगदाद पर हमला और होकर हमें पहुंचाया है। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बन अहमद खामोश हो गया। जो कुछ उसने कहा था बरकाई खान, लोई ताशी और यांग ने उससे इत्तफाक किया था। फिर बरकाई खान बोला और कहने लगा,
मंसूर बिन अहमद, मेरे भाई, थोड़ी देर तक असर का वक्त हो जाएगा और आज हम सब नमाज यहीं पढ़ेंगे और इमामत आप करवाएंगे। मंसूर बिन अहमद मान गया। थोड़ी देर बाद कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अजानों की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुईं। फिर सब एक मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद की दीवारें की पख्ता थी लेकिन छत मुखरोटी गिंबदों की सूरत में बनाई गई थी। ये मुखरोटी गिंबद मोटे कपड़ों के थे लेकिन उन पर चमड़े की चादरें सीकर उनको ज्यादा मजबूत और बारिश से महफूज। सब मस्जिद में दाखिल हुए। असर की नमाज की इमामत मंसूर बिन अहमद ने की। उसके बाद उसने दुआ मांगना शुरू की। ए अल्लाह, तो एक बेमिसाल और बेनज़ीर आका और मालिक है। मेरे अल्लाह, बाज़ तासब के सौदागर ख्वाब आज़ाब दास्तानों की तरह हम पर वारद होना शुरू हो गए हैं। काले जहन के इंसान हमारे शहरों पर मुसलसल आज़ाब लम्हों की दस्तक देना शुरू हो गए हैं। हमारे कलब के आंगनों में ज़स्त के दुख की आग बरसाते हुए हमारे लिए मवत के नेज़ों की हज़ारों मिनियों का आज़ाब तैयार कर रहे हैं। ए अल्लाह, रूह के ताल्लुक़ को तो ही बदन से जोड़ता है, तो ज़ल्ज़लों से शकस्ता दर व बाम को आबाद करता है। सदियों को लम्हों के फासलों में समेट कर तो ही वक्त के फासलों में सच्चाई की करनों के निश्र आता है। यहाँ तक कहते मंसूर बिन अहमद को रख जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी आवाज़ कपकपाने और डूबने लगी थी। ऐसा लगता था वो बड़ी मुश्किल से अपने हल्क के अंदर अपनी हिचकियों सकीर को रोक रहा हो। ये सूरत हाल देखते हुए उसके साथ आने वाले बहुत से लश्करी रोना लगे थे। कुछ की आवाज़ में सुनाई दे रही थी, कुछ की हिल्की हिल्की चैनें बुलंद हो रही थी, कुछ सक रहे थे, कुछ अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहे थे। यहाँ तक कि मंसूर बिन अहमद की रोती हुई आवाज़ फिर सुनाई दी। ए अल्लाह, वहशत पसंद दुश्मन हमारे तन मन को घायल करके हमारी हर सांस का अजीबनाक, हमारे हर लम्हे को क़यामत ख़ेज़ बनाकर हम पर मवत के सायों की तरह मारा होने के दर पे है। हमारे वजूद का राबता, हमारे तन का ताल्लुक़, हमारी बर्दाश्त व सुबर, हमारी चाहतों के असर, हमारी जान की राहतों को जिंदान के आज़ाब में बदल रहे के दर पे है। ए अल्लाह, रसूल अरबी की नबूवत के सदक़े में हमारी फरमा। ए अल्लाह, हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक दे कि हम अपने दुश्मनों पर खुश्पतों को खौफनाक आंधियों लम्हों की सलगती अहादीस की तरह वारद हों, उनके ताज़ा सरा बरसों की मंजुमत ज़स्त में बदल कर रख दें। मेरे अल्लाह, हमें हिम्मत दे कि हम अगर के अज़्म को मफलूज, उनकी ज़ुबान को गिंग और उनके पाँव को शकस्ता कर दें। ए ग़फ़ूर बर पर ए रहमान व क़य्यूम, हमारी मदद फरमा, इसलिए कि हम तुमसे मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और ज़रूरत के वक्त तुम ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह, हम हर समझ से मायूस होकर तेरे दरवाजे दस्तक दे रहे हैं। मेरे अल्लाह, हमारी नुसरत फरमा। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद खामोश हो गया। उसकी आंखों से आनी रवां थे, होंठ काट रहा था, जबकि उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले अक्सर रो रहे और कुछ अपनी आंखें खुश्क कर रहे थे। यहाँ तक कि जब मंसूर बिन अहमद अपनी जगह से उठा तब सब नमाजी उठकर बड़े पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफह कर लगे थे। सबसे पहले बरकाई खान, लोई ताशी और यांग खान ने मुसाफह किया था, फिर मुसाफह करने वालों का एक तांता सा बंध गया था। उस मौके पर बरकाई खान मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे बेहद खुशी और मुसरत हो रही है कि मैं आपको तलाश करने में कामयाब हो गया हूँ, वरना आप एक गुमनाम लश्करी की हैसियत से ही उन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर पड़े रहते, जो हालात की बड़ी सख्तम ज़रीफ़ी होती। मैं अब जाता हूँ और किसी रोज़ आपको और आपके सालारों को अपने शहर सराय बरकाई में मंगवाऊँगा और आप लोगों की इमदा और शानदार दिदवत का एहतमाम करूँगा। उसके साथ ही बरकाई खान अपने महाफ़ दस्तों के साथ कूच कर गया था।